بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام آیت ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میری ایک بہن عروہ ہے جس کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہو گئی۔ ہم دو بہنیں ہی ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، پر غربت کی وجہ سے 12 پڑھ کے ابو نے پڑھائی چھڑوا دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، پھر میں نے گرداری شروع کر دی، ساتھ ساتھ کپڑے بھی سلائی کرتی۔ جب میں بوتیک پر آرڈر لینے جاتی تو وہاں ایک اکثر لڑکا موجود ہوتا۔ مجھے اس لڑکے سے محبت ہونے لگی۔ میں اسے نہ جانے کتنی دیر وہیں کھڑی ہو کر دیکھتی اور وہ بھی اکثر مجھے دیکھتا اور مسکراتا۔ ایک دن اس نے مجھے نمبر اپنا دیا اور کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھے اپنا نمبر نہیں دیں۔ میں اس کے ہاتھ سے پکڑ کر گھر آ گئی۔ رات کے وقت میں نے اس نمبر پر کال کی، دوسری طرف سے فوراً پک کر لی گئی۔ وہ کہنے لگا میں آپ کی کال کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا لڑکے بھی کتنی جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ مجھ سے حال پوچھنے لگا۔ ابھی میں اس سے کوئی جواب دیتی مگر باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں کال بند کر کے ڈرتی ہوئی باہر آ گئی۔ سامنے سین کے درمیان میں گملہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، یہ کس نے پھینکا؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی مگر سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر یہ گملہ جس نے بھی پھینکا جان بوجھ کر پھینکا۔ میں وہاں سے گملہ اٹھانے لگی، اندر ایک چھوٹی سی پرچی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں گملہ سائڈ پر رکھ کے پرچی اندر لے گئی اور موبائل کی لائٹ مار کر دیکھنے لگی کیا لکھا ہوا ہے۔ کافی غور کرنے کے بعد پتہ چلا کسی نے میرا نام لکھنے کی کوشش کی ہے، پر کون ہو سکتا ہے؟ اس کشمکش میں بھول گئی کسی کی کال آ رہی ہے۔ میں نے کال اٹھائی، وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ میں نے یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ میں کل بات کروں گی۔ مجھے ابو سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اگر انہیں پتہ چل گیا تو پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح گھر میں خلاف توقع اوزاروں پر میری آنکھ کھلی۔ میں آنکھیں مسلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، سامنے ہی آپ ہی بیٹی رو رہی تھی اور میرا بہنوئی ٹانگ پہ ٹانگ دھرے اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے شک ہوا پھر سے بہنوئی نے آپ ہی پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا۔ میں آگے جا کر پوچھنے لگی آپ ہی کیا ہوا ہے؟ آپ ہی جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی اور مجھ سے ملی۔ میں نے امی سے بھی پوچھا کیا ہوا ہے، پر امی نے بھی مجھے کچھ نہ بتایا۔ پھر میں نے اپنی بہنوئی بابر کو دیکھنے لگی جو کہ مجھے عجیب نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ میں انہیں اگنور کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے آج وہ بہت عجیب لگ رہے تھے۔ آپ ہی بھی رو رہی تھیں، ضرور مجھ سے کوئی بات چھپائی جا رہی تھی۔ اپنی سوچوں میں مگن تھی، اپنے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ میں نے دیکھا میسج آیا ہوا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی، میں میسج کا جواب دینے لگی۔ ابھی میں نے 2 الفاظ ہی ٹائپ کیے تھے، مجھے ایسا لگا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا، پھر کوئی نہیں تھا۔ میں نے بنا جواب دی ہی موبائل رکھ دیا۔ میں جب بھی موبائل کی طرف جاتی کچھ نہ کچھ ہوتا اور یہ مجھے بڑا عجیب لگتا۔ دن گزرنے لگے، اب آئے دن بابر اور آپ ہی آئے ہوئے تھے۔ میں امی سے پوچھنے لگی امی پہلے تو کبھی بابر بھائی آپ ہی کو نہیں لاتے تھے، اب ہر وقت آئے ہوئے ہوتے ہیں؟ امی نے مجھے جواب نہ دیا اور بات گھما گئی اور کہنے لگی تم نے کافی دنوں سے بازار کا چکر نہیں لگایا، کہاں بھی نہیں لینے گئی؟ میں نے کہا میں کل چلی جاؤں گی۔ اگلے دن ہی میں بازار چلی گئی۔ سامنے بوتیک میں داخل ہوئی، وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری طرف بڑا، ڈر کے پیچھے ہوئے وہ ہنستا ہوا بولا پاگل ہو کیا؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا یہ بوتیک میرے بھائی کی ہے، اس وجہ سے میں یہاں پڑا رہتا ہوں، ابھی ہی لندن سے اپنی سٹڈی مکمل کر کے آیا ہوں۔ خیر سے میں رویہ بھی جانتا ہوں، آپ مجھے پسند کرتی ہیں۔ مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگنے لگی۔ وہ بولتا رہا اور میں سنتی رہی، پھر میں وہاں سے آرڈر لے کر گھر آ گئی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھی حماد سے بات کر رہی تھی۔ اس نے آج ہی اپنا نام حماد بتایا تھا۔ اچانک سے کچھ گرنے کی آواز آئی، میرے ہاتھ سے ڈر کی وجہ سے موبائل گر گیا۔ میں باہر گئی تو سامنے اس دن کی طرح کا گملہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے گملہ دیکھا، اس کے پاس ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ مجھے تجسس ہوا اس میں آخر ایسا کیا لکھا ہوگا۔ میں ارد گرد دیکھنے لگی پر سامنے کوئی بھی نہ آیا، نہ ہی کوئی تھا، پر کون پھینک سکتا تھا؟ یہ میں ہی جاننے کی کوشش کرتی کمرے میں آئی اور کاغذ پڑھنے لگی۔ وہ پڑھتی ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے ماتھے پہ پسینہ لگا۔ میں نے جلدی سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ہوئے کاغذ پاٹ کر پھینک دیا، اس سے پہلے کہ کوئی اور دیکھ لیتا، پر میرے لیے جاننا مشکل تھا یہ سب کون کر رہا تھا اور وہ یہ سب کیوں چاہتا ہے۔ اگلے دن میں رات کو سیان پہ ہی بیٹھی رہی، شاید کوئی پھر گملہ پھینک کے آئے، پر کوئی نہ آیا۔ میں نے سوچ لیا میں آپ ہی سے یہ بات شیئر کروں گی، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی۔ آپ ہی کیا کر سکتی تھی؟ میں کس سے بتاتی؟ ابھی میں اسی پریشانی میں تھی
एक और झटका लगा। हमाद के घर वाले मेरा रिश्ता लेकर आ गए। मुझे यकीन ना हुआ वो इतनी जल्दी बेच देगा रिश्ता, और फिर मुझे हद दर्जे की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब मेरे माँ बाप को बताया गया बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। और मेरे माँ बाप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतने में अमीर घर से रिश्ता आएगा। अब मुझे यही इंतज़ार था अम्मी अबू क्या फ़ैसला करेंगे। मुझे ये भी डर रहता था कहीं इनकार ही ना कर दें, पर अल्लाह का शुक्र अम्मी अबू ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। इन्हीं दिनों पता चला आप ही प्रेग्नेंट हैं, तो अम्मी मुझे कहने लगी कुछ दिन अपनी आप ही के पास चली जाओ। वो कह रही थी आलिया को कुछ दिन मेरी तरफ भेज दो। मैं खुश हो गई। आप ही के घर पे तो कोई होता ही नहीं है, सिर्फ आप ही होती है। बहनोई जी रात को घर आते हैं, मैं हमाद से बात कर लूँगी। मैं भी बड़ी खुश होकर आप ही के घर आ गई। आप ही न जाने क्यों मुझे मिलकर इतना रोई। मुझे खदशा होने लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मुझे हर वक्त आप ही के घर में डर लगता, पर ये तो मैं खुद भी नहीं जानती थी मुझे डर क्यों लगता है। हर वक्त दिल बेतरतीबी सी धड़कता। रात के वक्त मैं कानों में हैंड फ्री लगाए गाने सुन रही थी, साथ चाय भी बना रही थी। मुझे लगा कोई मेरे बहुत पीछे खड़ा है। मैंने डर के पीछे देखा, मेरा बहनोई खड़ा था। कहने लगा मुझे भी चाय बना दो। मैंने कहा आप अंदर चली जाएं, मैं आपको भेज दूंगी। वो मुझे घूरता हुआ अंदर चला गया। मैं उलझ कर रह गई। इस शख्स को मुझसे कहाँ दुश्मनी होने लगी है। मैंने फैसला कर लिया मैं कल ही घर चली जाऊंगी। ये तो जब देखता है खाने को दौड़ता है। अगले दिन ही मैं जाने की तैयारी में लग गई, पर पता नहीं बहनोई और आपी में क्या झगड़ा हुआ। उसने बुरी तरह आपी को मारा। मैं डर गई, पर आपी ने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं अम्मी अब्बू को कुछ भी ना बताऊं, और आपी ने मुझसे वादा भी लिया। मैंने घर आकर अम्मी अब्बू को कुछ ना बताया। फिर मैं हैरान थी कितना बुरा आपी के साथ सलूक होता है। मैं अक्सर हमाद से पूछती शादी के बाद कभी मुझ पे हाथ तो नहीं उठाएंगे। वो मुझे पागल कह देता। मैं बोला ऐसा क्यों करूँगा, और मुझे सुकून सा मिलता मेरा शोर आपी के शोर जैसा नहीं होगा। हमाद की और मेरी मंगनी को काफ़ी अरसा हो गया। हम दोनों में काफ़ी मोहब्बत बढ़ गई। फिर मुझे अक्सर रात के वक्त गमला गिरने की इस बात समझ ना आती। मुझे डर भी लगता था वो कौन मुझे ऐसे में से बेचता है। मैं अक्सर हमाद को बताने की कोशिश करती, मगर मेरी ज़बान मेरा साथ ना देती। कौन हो सकता था मेरा दुश्मन जो मुझे जलील कर रहा था, पर मैं अब इग्नोर करने लगी थी। मैं बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी जब अचानक धड़ाधड़ मेरा मोबाइल बोलने लगा। आप ही का नाम देखकर मैंने जल्दी से कॉल पिक की और आप ही से इनकी खैरियत पूछने लगी, पर उनकी बातें मुझे बहुत अजीब लगने लगी। मुझे कहने लगी आलिया हमेशा अम्मी अब्बू की बात मानना, उनके बाद कोई दुनिया में ख्याल नहीं रखता। पर जानती हो कभी कभी माँ बाप की बातें ऐसे मालूम होती हैं, हमारा दिल करता है माँ बाप से नफरत करने से, पर कभी भी माँ बाप की कोई बात पता चले तो उससे नफरत ना करना। आप ही की सारी बातें मेरे ऊपर से गुजरने लगी। मैंने कहा आप ही पता नहीं क्या बातें कर रही हैं, मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आप ही से बातें करने लग गई, पर आप ही मुझसे ऐसी बातें करने लगी जैसे फिर कभी बात नहीं होगी। मैंने काफ़ी बार आप ही से पूछा आप ठीक तो हैं। आप ही ने जैसे ही कॉल बंद की तो अम्मी कमरे में आ गई और मुझसे ऐसी बात की मुझे यूं लगा जैसे मेरी पूरी कायनात मुझसे छीनने की बात कर रही हो। अम्मी मैंने बेसाख्ता कहा, अम्मी आप क्या कह रही हैं, आपने हमारे से रिश्ता तोड़ दिया है। तो अम्मी कहने लगी हमें ये गवारा नहीं, लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी ने खुद अपने लिए लड़का पसंद किया है। मुझे हैरत होने लगी। पहले कुछ याद नहीं था, अब शादी के करीब अम्मी अबू ने रिश्ता ही तोड़ दिया। आप ही की हुई बातें, अम्मी की बातें, गमला, मेरा डर, हर चीज़ में उलझ गई। मैं बेबस हो गई। कुछ तो ज़रूर था जो मुझे नहीं मालूम था। कोई तो जानता था ये राज। मैंने हमाद के नंबर पर कॉल की, पर उसका नंबर बंद जा रहा था। सारा दिन ट्राई किया, पर शायद उसने अपना नंबर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया था। ऐसा भी क्या हो गया था, मेरे आंसू थमने के नाम ही ना ले रहे थे। अगले दिन ही एक और बुरी खबर सुनने को मिल गई। आप ही के 2 जुड़वा बचे हुए हैं, पर आप ही इस दुनिया में नहीं रही। मतलब मेरा साथ देने वाला अब कोई नहीं था। मुझे लगा अब मैं बिल्कुल तनहा हो गई हूँ, पर मेरी ये तन्हाई अगले दिन ही अब्बू अम्मी ने दूर कर दी और एक अजीब सी दरख्वास्त लेकर आए कि मैं बाबर अपनी बहनोई से निकाह कर लूँ, वरना आप ही के बच्चे रुल जाएंगे। इन्हें माँ की ज़रूरत है और मैं ही इन्हें माँ की तरह प्यार कर सकती हूँ, वरना ये किसी और सुतीली माँ के हाथ लग गए तो पता नहीं उनके साथ क्या सलूक होगा। मेरे सारे ख्वाब जो हमाद के साथ सजाए थे चकनाचूर हो गए थे। जो मैंने हमाद के साथ सजाए थे अब मज़ीद कुछ नहीं बचा था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने बाबर के साथ निकाह करने की हामी भर ली। ख़त्म तो सब कुछ ही हो गया था,
पर मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई। वो शख्स जिससे मैंने हमेशा आप ही के साथ देखा, मुझे ज़हर लगता था, आज वो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया। पर मुझे इससे कोई गर्ज नहीं था, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए इससे शादी की थी और मैं इनका खूब ध्यान रखती। मुझे पहले तो बदले बदले लगे, पर उसकी वही आदत शुरू हो गई, वो मुझ पे भी हाथ उठाने लगा। मुझे इसकी एक बात सुनकर इसका पूरा जुमला सुनने का तजस्सुस होता। वो मुझे अक्सर मारते हुए कहता, मैंने तुम्हारे बाप से। फिर वो खामोश हो जाता और मैं सोचती, क्या इस शख्स ने मेरे बाप से? कभी कभी वो मुझ पर हाथ उठाता और ख़ुद परेशान हो जाता। इसकी आंखों में शर्मिंदगी नज़र आने लगती, पर मैं इन्हें नहीं जानती थी इसकी आंखों में कौन सा मलाल है। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बुरे काम छोड़ने लगा। मुझे हैरानी हुई, उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी। अब वो भी बाकायदा नौकरी करना चाहता था। वो जैसा भी था, अपने जुड़वा बेटों से बहुत प्यार करता था। एक दिन काम से आकर मुझे कहता, कल रात को तैयार रहना, एक फंक्शन में जाना है। मैं हैरान हुई, शादी के बाद पहली दफ़ा किसी कम फंक्शन में ले जाएगा? मतलब मैं कपड़े देखने लगी, कौन सा डाल के जाऊंगी। मैंने सारी तैयारी कर ली। अगले दिन उसके साथ फंक्शन में चली गई। एक खूबसूरत सा हाल था, हर तरफ रोशनियां बिखरी हुई थी। वो मुझे वहीं खड़ा करके वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। मैं इर्द गिर्द देख रही थी, जब अचानक कोई मेरे सामने आ गया। मैंने उससे देखकर एकदम हैरान हुई और 2 कदम पीछे हो गई। कैसी हो? मतलब तुम लाइफ में आगे बढ़ गई हो? वो मुझे देखकर कहने लगा और मैं इर्द गिर्द बाबर को देखने लगी। अच्छा, वैसे मैं अभी तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे खुशी हुई तुमको आगे बढ़ गई हो। मैंने एकदम से की तरफ देखा, जो कि वहाँ से चला गया। मतलब वो मुझसे अभी भी मोहब्बत करता था। उसने मेरी वजह से शादी भी नहीं की थी। मुझे ना जाने क्या होने लगा। घर वापस आकर मैं नींद की गोलियां खाकर सो गई। जब सुबह आंख खुली तो हर तरफ खामोशी थी। मैंने उठकर साइड पर पड़ा कागज़ उठाया और मुझे हैरानी हुई। वही लिखाई वैसा ही कागज़, पर साइज में बड़ा, और उसमें लिखे गए अल्फाज थे या तीर, जो एक एक करके मेरे सीने में लगने लगे। आलिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब नहीं रहूँगा। जानती हो, रात के वक्त तुम्हारे घर में गमले फेंकने वाला ही मैं था। मैं ही तुम्हें और आमाद को साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हारी बहन को भी तुम्हारे माँ बाप से ख़रीदा था। इस दिन तुम्हारी आपी इसी वजह से रो रही थी। उसे ये बात पता चली थी, और तुम्हारी आपी को मारने वाला भी मैं ही हूँ। तुम्हारा हमाद से रिश्ता तोड़ने वाला भी ही मैं ही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी खुशियों का कातिल हूँ ना मैं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। प्लीज़ मेरे बच्चों का ख्याल रखना, तुम्हारे हवाले हैं। और मुझे नहीं पता था, मेरे मुश्किल वक्त में हमाद ने ही मेरा साथ दिया, मुझे नौकरी दी। सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। तुम मुझे माफ़ करोगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। अपने माँ बाप से कोई बात ना करना। तुम्हारा बाबर। पढ़ती ही मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब ये सब कुछ करने वाला बाबर था। इतने में मेरे मोबाइल की घंटी बजी। कॉल रिसीव करने पर पता चला बाबर का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे समझ नहीं आई मैं हंसूं या रोऊं, पर इतना मालूम था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ इस तरह पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।